I'm audible to all of you. Good morning, sir. I'm audible to all of you. Yes. My screen is shared. Okay. You are seeing. People are seeing my screen. Sir, screen is shared. Voice is clear. Yeah. What are you saying? Screen, your voice is not clear. Screen is shared, but voice is not clear. Huh? Yes, sir. Hello. Now it is audible to all of you. Yes, sir. Okay. So in previous lecture, I have discussed about uh, classification. We are in the process of discussing classification of OS. Okay. So in this, I have discussed more about batch processing system. So in that lecture, I have told you that what is batch. Batch is nothing but a group of jobs, similar jobs, and there is an interface between computer and user, and that interface is called, known as operator. So operator took the jobs from the user and see all the jobs. If there are similar jobs, then it groups the similar job and makes a batch. Okay, like this. And each batch is sent to the CPU for processing. Okay, so this is the very old, uh, you can say that's a system nowadays. Is yeah, it is in the use. Concept is used. The process are different. Okay, so I have discussed a lot about that. Now I am coming to next classification, that is the interactive operating system. And interactive operating system uh, means that there is a direct interaction between user and the computer. Whereas in batch processing system, there is no direct interaction between user and the computer. There is an interaction, but with the help of an interface, that, or you can say with the help of operator. So in interactive operating system, user can directly communicate with the computer using operating system. Okay, so that type of you can say that operating system is called interactive operating system. Nowadays, all type of operating system are interactive operating system. Okay, so a user can communicate or give instruction to the computer by
command prompt by typing anything or by clicking, or you can say using GUI, graphical user interface, to give instruction to the computer, like through keyboard or mouse. Okay, so in an interactive computers operating system, user can directly communicate with the computer with the interactive operating system. Okay. So it may be initially there is a DOS operating system where a user can directly communicate with the computer by giving the instructions using keyboard. Means what the user have to do, user have to type the command or type the instruction, and the computer take that instruction and perform accordingly. Okay, clear? So this type of operating system is called interactive operating system, and then nowadays all type of operating system are interactive operating system. Now come to time shared operating system. Okay, होता क्या है कि जैसे जैसे चीजें या जैसे जैसे यूजर की नीड बढ़ी, ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली तो होता क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल एज हार्डवेयर आर चेंज. ओके, जैसे जैसे हार्डवेयर चेंज हुआ या प्रोसेस ऑफ गिविंग इंफॉर्मेशन टू द कंप्यूटर इज चेंज, अकॉर्डिंग टू दैट operating system is also changed. So in that series, time shared operating system comes. Okay, this type of operating system is also called multitasking. Okay, multitasking means, as you know that there is a two words multi and tasking. It means that a user can perform more than one task at a time. Okay, so but the thing is that initially, or you can say in 90s, or even even 2000, you can say there is a uniprocessor based system. आजकल आप देख रहे होंगे कि dual core, octa core, quad core, there are different types of things are there. But initially 90s में, और क्या कहते हैं, जो हमारे सिस्टम हुआ करते थे, दैट आर ओनली यूनी प्रोसेसर, एक ही प्रोसेसर होता था, एंड देयर इज ओनली वन एल. ठीक है, तो होता क्या था कि मल्टीटास्किंग कैसे किया जाए. अब होता क्या था पहले कि इफ यूजर इज परफॉर्मिंग एनी टास्क, तो ही हैव टू स्टिक ओनली ऑन दैट टास्क. ओके, ही कैन नेवर परफॉर्म, ही कैन नॉट परफॉर्म other tasks. Okay, so once a task is completed, he have to switch to another task. Otherwise, he have to wait for it. तो डिमांड ये बढ़ी, यूजर की डिमांड बढ़ी. ठीक है, कि हम और ज्यादा से ज्यादा वर्क करना चाहते हैं. ठीक, तो अब डेफिनेटली डेफिनेटली क्या होगा कि देयर मस्ट बी अ सिस्टम फॉर this type of task. Okay, एक टाइम पे more than one task किया जाए, but the situation is that there is only one. ओके, अब कैसे हो गए. ठीक है, तो होता क्या है कि इसके लिए क्या कहते हैं, जैसे आप क्या करते हो घर में एक समझ लो कि एक लेबर लाते हो. ठीक है, और उससे आप क्या करते हो कि यू हैव टू परफॉर्म दिस. ओके, तो अब वो क्या करेगा, एक टाइम पे एक टास्क करेगा. ये कर सकता है क्यों, क्योंकि वो एक ही आदमी है, एक पर्टिकुलर इंस्टांस पे या पर्टिकुलर मोमेंट पे वो एक ही टास्क करेगा. लेकिन अगर आप उससे ये कह जाओ कि सुबह जैसे आप ऑफिस जाते हो या कॉलेज जाते हो, आपने उससे ये कहा कि एट 9 o'clock आपको क्या करना है, ये टास्क ये टास्क ये टास्क, आपने 5 टास्क बताया और मैं शाम को आऊंगा ये सारे टास्क देखते हैं. ठीक, देन व्हाट ही विल डू, वो क्या करेगा, he will perform the task. Then after completing the task, he will move to another task. After completing that particular task, he will move to another task. Okay. तो आपने क्या किया, आप सुबह गए, क्लियर है, तो आपने बताया कि इतने टास्क कंप्लीट करने हैं, और शाम को आया तो 5 टास्क उसको बता देते हैं, एंड ऑल दे वर कंप्लीटेड. लेकिन अगर देखा जाए तो कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पे वो कोई एक ही टास्क कर रहा है, लेकिन आपको क्या लगा कि पांचों के पांचों टास्क किए. क्लियर है, तो यही एक कॉन्सेप्ट लिया गया टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम में,
ठीक है, each task is given some time to execute so that all tasks work smoothly. Each user gets the time of CPU as they use a single system. Okay, मतलब क्या है कि जैसे क्या है, प्रोसेसर का एक क्लॉक साइकिल होता है, ठीक? मान लेते हैं वैसे तो माइक्रो सेकंड होते हैं, एक सेकंड पे थाउजेंड्स टाइम ये क्या होता है, क्या कहते हैं, के उस लेवल पे वर्क करता है प्रोसेसर। लेकिन मान लेते हैं कि जैसे एक प्रोसेसर का क्लॉक साइकिल मतलब कितने टाइम पे एक टास्क उसकी कैपेबिलिटी है, ठीक? वो एक सेकंड की साइकिल है और 5 टास्क मिले उसको कंप्लीट करने के। तो वो क्या करेगा, एक सेकंड तक अगर क्लॉक साइकिल है, ठीक, 10 सेकंड का मान लो समझने के लिए, 10 सेकंड का एक क्लॉक साइकिल है, तो वो क्या करेगा कि rather than giving 10 seconds to a particular task, what he will do, it divide that 10 सेकंड into 5 टास्क, मतलब 2 सेकंड 3 सेकंड या किसी को 5 सेकंड किसी को 1 सेकंड। और आपको क्या लगेगा कि एक क्लॉक है जो 10 सेकंड का मान के चल रहा है, उस क्लॉक साइकिल में क्या था, उसने पांचों टास्क कुछ ना कुछ कंप्लीट किए। कैसे किए, 2 सेकंड एक टास्क को, दूसरे टास्क को 3 सेकंड, किसी को एक, और इस तरह से 10 सेकंड में उसने पांचों। आपको क्या लग रहा है, आपको क्या क्या लग रहा है कि all 5 tasks are executed by processor, but at a particular moment only one task is executed. Okay, तो ये क्या कहलाता है, हमारा टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब क्या है, टाइम को शेयर करना। Clear? जैसे क्या है, आप कॉलेज आते हो, ठीक है, आपके पेरेंट्स को लगा कि आप 5 सब्जेक्ट पढ़े, ठीक, क्लियर है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे कोई एक पेपर पढ़ रहे हो, ठीक, क्लियर है। यही अगर आप 9 to 5 आपका जो टाइम है, अगर इसको क्लॉक माने, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो कि एक एक पेपर के बीच में स्विच करते जा रहे हैं, ठीक, और एक्सप्रेशन क्या आ रहा है कि 9 to 5 आपने 10 टास्क कंप्लीट किया, 10 पेपर। यही कॉन्सेप्ट हो गया है टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग। So the task can be from a single user or different user also. The time that each task get to execute is called quantum. जो एक टाइम लगता है किसी एक टास्क को एग्जीक्यूट करने में, ठीक है, दैट इज कॉल्ड क्वांटम। और क्या होता है कि आफ्टर दिस टाइम इंटरवल ओएस क्या करता है, स्विच करता है। जैसे आप देखो क्या है, आप एक वर्ड फाइल भी खोले हुए हो, you are using email, you are using web browser, you are also enjoying music, you are seeing film, lot of, means that there are lot of programs open into your system, but there are only one processor। तो होगा क्या, प्रोसेसर क्या करेगा, it will divide its own clock cycle into number of program। क्लियर है। अब देखो क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हीं के हिसाब से मैनेज करेगा। और एक टाइम पे देखो क्या है, एक टाइम पे तो आप देख रहे हो कि एक सिंगल एरो है, इट मींस एट अ टाइम सीपीयू विल एग्जीक्यूट ओनली वन प्रोग्राम। क्लियर, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, हमारा टाइम शेयरिंग, शेयरिंग द टाइम। क्यों करते हैं, फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ मोर प्रोग्राम। ओके, क्लियर। अब आते हैं एडवांटेज क्या है टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के। एडवांटेज क्या है, सिंस इक्वल टाइम क्वांटम इज गिवन टू ईच प्रोसेस गेट्स इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एग्जीक्यूट। होता क्या है कि जितने प्रोसेस होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, सबको इक्वल टाइम दिया जाता है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, वर्ड ओपन कर रखा है, ठीक है, हमने म्यूजिक भी सुन रहे हैं, हमने ब्राउजिंग भी कर रहे हैं, तो क्या होगा, सबको इक्वल टाइम दिया जाएगा, उतने टाइम पे एग्जीक्यूट होगा, फिर वो नेक्स्ट इट विल स्विच टू नेक्स्ट प्रोग्राम एंड सो ऑन। So each program will get the equal opportunity to execute. The CPU will busy in most of the cases, and this is good to have cases. CPU idle time can be reduced. तो होता क्या है कि जैसे अगर CPU is executing only one program, तो until unless it will complete, you you are not authorized to execute another time. Okay, तो है क्या कि अब जैसे क्या है, एक फॉर एग्जांपल हमने बताया कि आप क्या कहते हैं, टाइप करने का आपने वर्ड ओपन किया,
ठीक, क्लियर। अब आप क्या है, वर्ड ओपन किया है, तो अब क्या होगा कि जब तक आप कीबोर्ड से टाइप नहीं करोगे, कीबोर्ड से टाइप नहीं करोगे, यू विल गेट नथिंग। ठीक है, जब आप टाइप करोगे तभी वो क्या करेगा, इट विल सेंड द मैसेज टू द वर्ड एंड आपको स्क्रीन पे टाइप करना होगा। लेकिन अगर क्या है कि अगर आप कुछ नहीं टाइप करोगे, यू आर नॉट यूजिंग कीबोर्ड, ओके, तो क्या होगा, एट दैट पर्टिकुलर टाइम सीपीयू बिकम आइडल, मतलब क्या है, सीपीयू इज नॉट डूइंग एनीथिंग। क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब है क्या कि अगर कई सारे प्रोसेस हैं, ठीक, जैसे क्या है कि आप वर्ड पे टाइप भी कर रहे हो, आप गाना भी सुन रहे हो, आप ब्राउजिंग भी कर रहे हो, तो वो क्या कर, इफ यू आर नॉट गिविंग इनपुट टू सीपीयू, ठीक है, यू आर नॉट टाइपिंग, तो इट मीन्स क्या है कि सीपीयू के पास अभी भी वर्क है, वो क्या कर रहा है, गाना चला रहा है या ब्राउजिंग कर रहा है। तो इससे क्या होता है कि जो सीपीयू आइडल टाइम है, मतलब सीपीयू का जो टाइम आइडल टाइम है वो क्या है, रिड्यूस हो रहा है, मतलब सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आप कर पा रहे हैं। ठीक, फ्यूअर चांसेस ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर, क्योंकि क्या है, स्विच करता रहता है, तो अगर आपने दो वर्ड आपने ओपन कर रखा है, ठीक है, या दो मतलब एप्लीकेशन ओपन करा, तो मतलब वो क्या होता है, क्योंकि वो स्विच करता है, उसका एक एड्रेस होता है, तो डुप्लीकेशन के चांसेस कम है। ठीक, क्लियर। तो दीज आर द एडवांटेज ऑफ टाइम शेयर, क्लियर है। तो क्या होता है कि मैक्सिमम आप यूटिलाइज कर सकते हो इसका सीपीयू का, ठीक, और रिड्यूस कर सकते हो सीपीयू आगे, ठीक है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन है, देखिए कई सारे प्रोग्राम, मोर देन वन प्रोग्राम आर एट ए टाइम, तो है क्या कि सीपीयू का है क्या, इफ वन प्रोग्राम इज नॉट करंटली परफॉर्मिंग, सीपीयू कैन मूव टू एनी। डिसएडवांटेज क्या है, प्रोसेस हैविंग हायर प्रायोरिटी विल नॉट गेट chance to will not get the chance to execute first because the equal opportunity is given to each process. Okay. Problem क्या है कि if there are four process or there are four tasks ready to execute, in this task one task is having high priority. It's a very high priority and you have to execute. But there is a constant that every task have to give the equal opportunity. So what problem arise here? What problem arise here? The higher priority process will not get the chance to execute. Okay. क्लियर है, तो हो सकता है कि जो बहुत जरूरी वाली चीजें हैं वो एग्जीक्यूट ना हो, होगा, लेकिन क्या होगा कि अगर तुरंत करना है, उस तुरंत पे नहीं। Reliability problem. Yeah, there nowadays it is not such a disadvantage because at that time uh, when time shared operating system was there, at that time hardware was not too strong. Okay. Nowadays this hardware are too much strong or too much strong you can say, and high quality hardware are there, so yeah, reliability प्रॉब्लम इज रिड्यूसिंग। रिलायबिलिटी कब आती है, होती क्या है कि कई सारे प्रोसेस होते हैं, तो होता क्या है कि इतनी फ्रीक्वेंट स्विचिंग होती है, अगर एक दो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करें देन ओके, इफ यू हैव ओपन a lot of programs, so definitely there is a chances that you will get the wrong result at that time। हैंग करने की प्रॉब्लम ये सब हो जाती है, लेकिन आज के टाइम पे क्या है, टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर टेक्नोलॉजी इतनी high tech you can say, so there, there is a less chance of problem. One must have to take care of security and integrity, ये तो मैंने बताया ही किया, ठीक है, बिकॉज क्या है कि सिंक्रोनाइजेशन मस्ट बी देयर, अदरवाइज होगा क्या कि as more than one task are executing at the same time, and for executing any task you have to uh, there is a requirement of programs and data, okay, so you have to take care about that कि which program is for which task और which data is for which task, कौन सा डाटा किस टास्क के लिए है, ये आपको सिंक्रोनाइज करना पड़ता है, तो ये एक इशू है, ठीक है। डाटा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम डेफिनेटली, बिकॉज अगर एक ही
प्रोसेस एक ही प्रोग्राम है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर मोर देन वन प्रॉब्लम तो क्या होगा, एक कम्युनिकेशन, एक गुड कम्युनिकेशन मस्ट बी देयर, अदरवाइज क्या होगा, कोई एक टास्क एग्जीक्यूट नहीं। ठीक, तो दिस इज द टाइम शेयर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल सा एक लाइन में बता देता हूँ, इट इज ओनली मेंट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ मोर प्रोग्राम एट ए टाइम। लेकिन क्या होगा, आपको लगता है कि कई सारे प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर मोमेंट पे अगर आप चेक करोगे तो कोई एक ही होगा, लेकिन ये स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि आप पता ही नहीं कर पाते हो कि मतलब क्या कहते हैं कि आपको लगता ऐसा है कि सारे के सारे एक साथ ही, लेकिन ऐसा होता है। नाउ कम टू अनदर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम इज nothing but it's an extension of the personal computer. In personal computer all resources are embedded into a system, okay? लेकिन हुआ क्या कि जैसे आपके पास एक प्रिंटर है, ठीक, क्लियर है। अब अगर क्या है कि there is no concept of distributed system, it means that if a printer is there, so that particular printer is meant only for a system, only one computer system। ठीक, अगर आपको क्या करना है, किसी दूसरे सिस्टम से आपको प्रिंट देना है तो यू आर नॉट एबल टू प्रिंट आउट, व्हाई, बिकॉज दैट पर्टिकुलर प्रिंटर इज डेडिकेटेड टू वन सिस्टम। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम क्या करता है कि इट गिव्स यू द कैपेबिलिटी और द फैसिलिटी, ओके, so that you can use, you can uh, share, yeah, you can say, or you can use multiple resources, okay? अगर आपके पास एक प्रिंटर है तो 10 लोग उसको यूज करते हैं, इट मींस द प्रिंटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू डिफरेंट कंपनीज, ओके? आप क्या कर रहे हो, क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड का एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है कि जैसे एटीएम सिस्टम है, ठीक, तो एटीएम सिस्टम में क्या है कि अगर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का कॉन्सेप्ट ना होता, ठीक, तो क्या होता है कि फॉर एवरी एटीएम मशीन पूरा का पूरा जो डाटाबेस है एंड द प्रोग्राम मस्ट बी स्टोर्ड इनटू दैट पर्टिकुलर एटीएम सिस्टम। अभी क्या है कि द मेन database is stored into a single server and lot of ATMs are connected with that particular server, okay? The interface is provided to the ATM system and you can use that particular database by your ATM machine। तो अगर डिस्ट्रीब्यूटर ना होता तो क्या होता है, हर एक एटीएम पे पूरा का पूरा वो सॉफ्टवेयर, वो डाटाबेस, वो सबका डालना पड़ता है, तो कितनी हैवी आपको एटीएम मशीन लगानी। लेकिन अब क्या है कि आप क्या कर रहे हो, सर्वर जो है वो बॉम्बे में है, डाटाबेस बॉम्बे में है, आपके एटीएम है वहाँ पे एक इंटरफेस है, आपने क्या किया, क्लिक किया, ठीक, और आपने क्या किया, पैसे निकलवा लिए और आपके अकाउंट में वो सारी चीजें पैरेलली अपडेट भी होगी, ठीक, क्लियर। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। और इसके अलावा क्या है, एटीएम का एग्जांपल है, ठीक, और और भी बहुत सारी चीजें, प्रिंटर का हमने एक एग्जांपल बताया कि प्रिंटर इज डिस्ट्रीब्यूटेड, बहुत सारी चीजें इस तरह से, ठीक है। तो है क्या कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। तो लेकिन अब इसके लिए क्या है कि मतलब ये क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड क्या करता है कि यू कैन शेयर्ड योर रिसोर्स। अगर आपके पास रिसोर्स है तो आप अपनी सिस्टम, इट इज नॉट ओनली मेंट फॉर ए पर्टिकुलर सिस्टम, इट मे बी connected to different systems so that anyone can access that particular resource, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तो distributed operating system is remote access, one user can access the other of other system and can work accordingly, so remote access is possible in this distributed operating system। इस लोकस एग्जांपल है, बहुत सारे ऐसे आजकल विंडोज में भी डिस्ट्रीब्यूटेड का कॉन्सेप्ट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो बहुत ऐसे भी होते हैं कि जिसमें क्या होता है कि जस्ट लाइक, हाँ, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम का भी आप एग्जांपल देख सकते हो, ठीक, जहाँ पे क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्लियर है। तो इस टाइप के सिस्टम के लिए जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया है दैट इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम।
मीन्स क्या है कि आप रिमोटली किसी चीज को एक्सेस कर सकते हो। जैसे क्या है कि आप कॉलेज की वेबसाइट पे आप अपना घर बैठे क्या है कि कॉलेज का जो डाटाबेस है वो क्या है कॉलेज के सर्वर पे है तो या कॉलेज के सिस्टम पे है, बट यू कैन एक्सेस योर डाटा फ्रॉम योर होम। तो दिस इज द कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। क्लियर है? नहीं तो क्या होता है कि आप पूरा का पूरा फेच करते डाटा, फिर आप उस पर कोई भी बात। एडवांटेज क्या है कि सिस्टम डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में क्या है कि अगर एक सिस्टम फेल होता है तो पूरा का पूरा सिस्टम फेल होने की जरूरत नहीं है। जैसे एक एटीएम फेल हो गया, ठीक, तो मतलब क्या है कि ऐसा नहीं है कि और सारे एटीएम ना हो। हाँ, डिसएडवांटेज ये हो सकता है कि मेन सर्वर अगर फेल हो गया तो कुछ नहीं होगा। Resources are shared between each other. The load on host computer get distributed and this in turn increases the efficiency. Since resources are being shared, computation is highly fast and durable. Okay. रिसोर्सेज शेयर किए जाते हैं तो कंप्यूटेशन क्या है और क्या कहते हैं एग्जीक्यूशन बिकम्स वेरी हाई एंड फास्ट एंड durable. Disadvantage क्या है? Since data is shared among all computers, to make the data secure and accessible to few computers, you need to put some extra effort. Means क्या है कि data are distributed, programs are distributed, so for making your data secure, you have to do something for that. So there must be something. Uh, there must be hardware, there must be software which secure your data because data is remotely stored. Okay. The main thing is that the data communication means different computers are connected to each other through communication media. Okay. So if there is a problem in communication, you are not able to access. Okay. तो होगा क्या कि अगर एक कम्युनिकेशन ब्रेक होता है द होल कम्युनिकेशन विल बी। तो अगर क्या है सर्वर जैसे पेटीएम का है, अगर मेन सर्वर if main server is affected, then all the ATMs connected to that particular server will be affected. So this is the distributed operating system. Now come to network operating system. In network operating system and distributed operating system, if you are seeing in a first sight, you will find that both are same. Okay, but distributed, there is a slight difference between network and distributed. In network system, just like that, जैसे अगर आप क्या कर रहे हो कि वर्ल्ड वाइड वेब, ये क्या है कि नेटवर्क, इसके लिए नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, क्लियर है? जस्ट आपके कॉलेज में जैसे क्या है कि ओरेकल, ओरेकल एक मेन सर्वर पे है, लेकिन आप ओरेकल एक्सेस कर लेंगे, इसका मतलब कि नाउ यू डिस्ट्रीब्यूट दैट ओरेकल टू डिफरेंट सिस्टम। ठीक है, लेकिन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, वेरियस कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विद ए कंप्यूटर। जैसे अब यहाँ पे देखो देयर इज ए कंप्यूटर, इट इज कनेक्टेड विद ऑल। ओके, क्लियर है? तो ये क्या कहलाता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आज के टाइम पे क्या है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम यू बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, क्लियर? तो जैसे क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है कि रिसोर्स क्या होते हैं शेयर्ड किए रिसोर्सेज, जैसे प्रिंटर और ये सारे या कोई प्रोसेसर आप शेयर कर लें। लेकिन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या है, इन दिस ओनली कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड। अब इसके अंदर क्या है, इन दोनों के बीच में यू कैन डिस्ट्रीब्यूट योर सॉफ्टवेयर। ओके, क्लियर है? दोनों यूज हो सकते हैं। क्लियर है? So the primary purpose of network operating system to allow shared file and printer access among multiple computer in a network, typically a local area network, a private network or to other network. The network operating system runs on a server and provides the server the capability to manage the data, users, group, security application and other networking functions. To function network operating system requires an existing operating system. Okay. So जितने भी आप देख रहे हो चाहे
जैसे हमने आपको एटीएम वाला भी बताया, तो उसमें भी क्या होगा, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, बिकॉज lot of computers are connected with server. Okay, but the database and the program or data is distributed to different ways. Okay. Network operating system के advantage क्या हैं? They are highly stable. Server manage the security concern. Remote access is possible for different location and type of system. It can manage multiple requests simultaneously and also provide security. देखो जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का मेन अगर आपको समझना है, दैट इज द वेब ब्राउजर. ओके, और you are connected with a different computers all over the world. Okay, तो वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, रेलवे रिजर्वेशन सिस्टम है, बैंकिंग सिस्टम है, एटीएम सिस्टम है. ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग. दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड. मैं बता देता हूँ नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम. Disadvantage क्या है? High cost of buying and running a server, dependency on a central location for most operations, regular maintenance and updates are. अब ये जो है, इससे you will clear that what is the difference between network operating system and distributed operating. तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो लोकल सर्विसेज टू रिमोट क्लाइंट पे होता है. ठीक, ये क्या होता है, मैनेज द हार्डवेयर रिसोर्सेज. इन नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कम्युनिकेशन टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ फाइल. इसमें क्या होता है, टेक प्लेस ऑन द बेसिस ऑफ मैसेजेस एंड शेयर्ड. ठीक, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज मोर स्केलेबल देन डिस्ट्रीब्यूटेड. अब है मोर स्केलेबल, लेस स्केलेबल होते हैं. ठीक है, द टाइटली कपल और लूजली कपल का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है. Network operating system fault tolerance is less, fault tolerance is high. Remote of rate of autonomy in network operating system is high, while the rate of autonomy in distributed operating system is less. Ease of implementation in network operating system is also high, while in distributed operating ease of implementation is less. Network operating system, all nodes can have different operating system, while in this all nodes have the same operating. तो मेजर अगर if you are going with the differences, so the major difference is that in network operating system you are connected with a different type of different computers. So and you are also connected with a different type of computer, different type of operating systems are. But in distributed operating system, all nodes which you are connected with have the same operating system. That's the main. Now come to real-time operating system. In real-time operating system, real-time operating system just it means so that real-time means whatever the activity is performed, it must be on time. ठीक है, जैसे आप क्या कर रहे हो, यू आर सीइंग द लाइव मैचेस. ठीक है, तो उसमें क्या है कि अहमदाबाद में मैच हो रहा है और यू आर सीइंग इन लखनऊ. ठीक है, तो उसमें क्या है कि टाइम से होना चाहिए. ऐसा नहीं कि अहमदाबाद में मैच हो रहा है उसका टेलीकास्ट आपको 10 मिनट के बाद आया. ठीक, ये ऐसा नहीं है. या क्या कहते हैं, आप क्या कह रहे हो, कोई भी एक टास्क परफॉर्म कि 10 मिनट में कंप्लीट हो जाना चाहिए. या जैसे आप मिलिट्री सिस्टम में क्या हो रहा है कि ये मिसाइल हैव टू टारगेट एरोप्लेन, और आपने एक टाइम कैलकुलेट के 2 सेकंड के अंदर अगर फायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा. अगर उसमें से 2.1 सेकंड भी होगा तो क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा. ठीक, तो इन सब सिस्टम्स के लिए एंड फॉर दैट टाइप ऑफ एक्टिविटी द ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्वायर्स रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो टाइम होता है दैट इज कॉल्ड रिस्पांस टाइम. तो वो उस टाइम पे ही बिल्कुल एक्यूरेट रिजल्ट आना चाहिए. तो दैट इज कॉल्ड रियल टाइम. जैसे क्या है कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, मेडिकल इमेज सिस्टम, इंडस्ट्रियल कंट्रोल सिस्टम, वेपन सिस्टम, रोबोट्स, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ऑल दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज for performing all these type of activities, the operating system is called real time.
तो इसमें क्या है कि टाइम ही मेन कांस्टेंट है, ठीक। बाकी एक्टिविटी सारी वही होंगी लेकिन टाइम ही मेन, ठीक है। एडवांटेज क्या है? इट इज एन एरर फ्री सिस्टम, द सिस्टम फोकस ऑन रनिंग मल्टीपल एप्लीकेशन, memory allocation is best maintained in them, maximum consumption of device system execution of more output from all the resources time assigned for shifting tasks in these systems are very low. Very few tasks can run at the same time. System resources are more expensive. Complex algorithm is difficult for designers to write. इसमें क्या है कि आप मल्टी प्रोग्रामिंग ज़्यादा नहीं कर सकते हो, क्यों? क्योंकि क्या है कि इसमें टाइम कांस्टेंट बहुत ज़्यादा है। एक टाइम एट अ टाइम यू हैव टू परफॉर्म ओनली वन टास्क, ओके। तो दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम आर कॉल्ड रियल टाइम। मीन्स क्या है कि टाइम कांस्टेंट इज वेरी मच। नेक्स्ट आते हैं एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। Embedded operating system and real-time operating system, sometimes people are mixed with each other. Embedded system means that any hardware or any system which is used for a specific purpose, like आपके घर में ओवन है, एसी है, फ्रिज है, ठीक, वॉशिंग मशीन है। तो इन सब में क्या है कि इन सब में भी एक रियल टाइम बेस है। जैसे 10 मिनट के लिए आपने गर्म किया या 10 सेकंड के लिए गर्म किया तो 10 सेकंड पे एग्जैक्टली बंद हो जाए, अदरवाइज क्या होगा, आपका खाना जल जाएगा। या 5 सेकंड के लिए आपने कपड़े धोने के लिए रखे तो 5 सेकंड में बंद हो जाए, अदरवाइज क्या होगा, वो चलता रहेगा, ठीक। क्लियर है? तो इसमें भी रियल टाइम सिस्टम यूज होता है, लेकिन क्या है, रियल ये एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम को इट इज मेंट फॉर ए स्पेसिफिक टास्क। क्लियर है? तो आपके सराउंडिंग में जितने भी होम अप्लायंसेस यू आर सीइंग, in that home appliances whatever the operating system are used, it is called embedded operating system, ठीक। ये क्या होता है, स्पेसिफिक वर्क के लिए, जैसे एसी है, वॉशिंग मशीन है, ओवन है आपके, मीन्स क्या है, एम्बेडेड सिस्टम मीन्स स्पेसिफिक टास्क इज एम्बेडेड टू ए हार्डवेयर, ठीक है। तो उसके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा, ऐसा है कि आप लोग अटेंडेंस देते रहो। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम के एडवांटेज क्या है? सिंस इट इज डेडिकेटेड टू ए पर्टिकुलर जॉब, सो इट इज वेरी फास्ट, लो कॉस्ट होते हैं, these consume very less memory and other resources. Only one job can be performed at a time. It is difficult to upgrade or nearly scalable. ठीक है, scalable नहीं होते हैं, मतलब क्या है कि if the thing which is meant for AC, then it is meant for AC. You can't embedded the concept of oven into AC और washing machine. Means specific purpose के लिए डिजाइन है तो वो डिजाइन, क्लियर है? तो इसमें भी रियल टाइम का यूज होता है। इसमें भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं वो होते हैं रियल टाइम बेस्ड होते हैं, लेकिन ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम को हम क्या कहते हैं, एम्बेडेड ऑपरेटिंग। नेक्स्ट कम टू मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। आज के टाइम पे एवरीथिंग मतलब क्या है कि मोबाइल बेस्ड ही आ रहे हैं, तो इसमें जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किए जाते हैं वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जैसे एंड्रॉयड है, iOS है, ये सारी चीज़ें। तो एक तरीके से ये भी कह सकते हो कि ये हैंडहेल्ड डिवाइसेस के लिए बने होते हैं, ठीक। और क्या होता है, कम्युनिकेशन, इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज होती हैं। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का भी कॉन्सेप्ट होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड का, सबका क्या होता है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एम्बेडेड इनटू ए device. Okay. So that's why it is called mobile operating system. Mobile, why it is called mobile? Because there is a concept of mobility. Means you can move with move from one place to another. So these are Android. There are Android. There are iOS. Okay, BlackBerry, Web, and WatchOS. There are a lot of operating systems out there, but it is specifically designed for smartphone, tablet, and wearable. So these are the classification of OS, and I have discussed various type of uh, classified OS. तो हमें लगता है कि सबने अटेंडेंस दे लिया।
नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ ओएस पढ़ाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं टर्मिनोलॉजी है ओएस से रिलेटेड, अबाउट दीज।